Assalamu alaikum friends. Hello everyone. So now let's start with AS 13 Accounting for Investments. Now friends, here in this standard we will learn for accounting for investments, but the practical aspect of this part will be studied detail in the further chapter. If you know, you have an individual chapter on this accounting for investments, but here this we will study the conceptual part, the theoretical concepts of this standard, right? All the practical illustrations will be learned in your individual chapter. So now let's start with it. First of all, they have given some introduction, which is very much easy. You can read it. Let's move further. They have started with the standard does not deal with, saying, just moving further, you move one page further, and if you can see here that they have given some definitions. So first, when we are learning accounting for investments, what do you mean by investment? आपने वर्ड इन्वेस्टमेंट तो सुना होगा, कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी ने गोल्ड लेके इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी ने सिल्वर लेके इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी ने शेयर्स परचेज करके इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी ने रियल एस्टेट में परचेज किया हुआ है, कहीं पे लैंड खरीदी है या फिर एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी है या फिर बिल्डिंग खरीदा हुआ है. इस तरह से हर कोई इंसान अपने अपने तरह से इन्वेस्टमेंट करता है. मे बी एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है. सो ये हुआ इन्वेस्टमेंट. तो ये लिटरली हम लेमन लैंग्वेज में हम इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं. बट लेट्स सी द मीनिंग बाय द गिवन बाय द स्टैंडर्ड. Investments are asset held by an enterprise for earning income by way of dividend, interest, rentals, for capital appreciation or for other benefits to the investing enterprise. तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट आपका एक एसेट है. एसेट का मतलब अगर you need to recall it from your chapter number 2, if you can recall it. Asset is what? Yes, asset is the one which you are controlling, right? Which is controlled by the enterprise, and it is expected that economic benefits will flow to you, right? So that is called an asset. हमने वहाँ पे asset का recognition criteria भी देखा था. So you must recall it. तो इन्वेस्टमेंट तो पहले आपका एक एसेट है, ठीक है. फिर क्या है, वो एंटरप्राइज के पास है, हेल्ड बाय एंटरप्राइज, राइट. फॉर अर्निंग इनकम. इन्वेस्टमेंट आप करते क्यों है? ताकि आप उसमें से इनकम अर्न करें. चाहे वो इंटरेस्ट हो, एफडी हो तो उसमें से आपको इंटरेस्ट मिलेगा. शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ हो, आपको डिविडेंड मिलेगा. डिबेंचर्स हो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा. फिर प्रॉपर्टी हो, उसमें से आपको रेंट इनकम होगा. एंड ऑल्सो कैपिटल एप्रिसिएशन. जब आप अपना बिल्डिंग कॉस्ट सेल करेंगे तो आपका मतलब जो भी आपका वैल्यू है वो बढ़ेगा. वैल्यू जो आपकी कॉस्ट से, आपने 10 lakhs में बिल्डिंग परचेज किया था, आज उसका मार्केट वैल्यू 20 lakhs रुपीज़ है, तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ 10 lakhs से, राइट. तो उस वो भी आपका एक इनकम हुआ. तो ये भी सभी इनकम आप अर्न करने के लिए आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट. लेकिन जो एसेट आपके स्टॉक इन ट्रेड में है उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाता. इन्वेस्टमेंट इज समथिंग एल्स वेर यू विच यू हैव होल्ड फॉर यू for earning income, but stock in trade is your normal ordinary course of business. It is a revenue generating activity of your business. It is not so stock in trade is not included in your investments, right. So now we understood what is investment. Now let's understand what is out of the scope of this standard, where this which parts this standard does not deal with, right. So first is basis for recognition of interest, dividend and rentals on investments which are covered by AS 9. Now when the income earned on investments, right. So this income, how to recognize it, what is the recognition criteria, where to recognize, how to do its accounting, is now nowhere specified in this standard. The standard talks only and only about the accounting for the investments, the classification of the investments and their valuation, their reclassifications, their disposal, right. The standard nowhere talks about the income earned on the investments. So this, how to recognize this income will be studied in AS 9, right.
AS9 specifically deals about revenue recognition, where you can know that how to at what time and how to record or recognize your revenue in your books of accounts. Thereafter, operating or finance leases. When you have property, you can give it on lease. So whether it is a operating lease or a finance lease, it is discussed in detail in AS19, right? So it is not covered here. Thereafter, investments on retirement benefit plans and life insurance enterprises. Now, this type of investments are covered by AS15. This is specifically for employees, right? Next, mutual funds, venture capital funds, and or related asset management companies, banks, PFIs formed under central or state government act or under declared under Companies Act 2013. So we have investment in mutual funds, right? It is a very emerging concept right now. So mutual fund, venture capital funds, and asset management companies, if you would have learned in FM finance, right? सो बैंक्स पे PFI, वो सभी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे कवर नहीं किया हुआ है, राइट? तो ये हुआ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड. नाउ we learned what do you mean by investment and what are the exclusions of this investment for this standard. Now let's move to another definition, that is fair value. जब आप उसका वैल्यूएशन समझेंगे तब आपको टर्म्स यूज होंगे, fair value, market value, carrying amount. So let's understand it. Fair value. Fair value is the amount for which asset could be exchanged between a knowledgeable willing buyer and a knowledgeable willing seller in an arm's length transaction. तो फेयर वैल्यू क्या है? आप उस वैल्यू से आपका एसेट एक्सचेंज कर सकते हैं एक नॉलेजेबल बायर और एक नॉलेजेबल सेलर के साथ. एक बायर है जिनको खरीदना है और वो पूरी मार्केट की इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, और एक सेलर है उसके पास भी पूरी जानकारी है, वो खुद नॉलेजेबल है और वो इच्छता है, उनका डिज़ायर है उसको बेचने का, राइट? इन दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है फेयर बेसिस पे, मतलब कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पे, ना ही कोई रिलेटिव्स है तो कम पैसे लिए, ऐसा कुछ नहीं, फेयर बेसिस पे नॉर्मल मार्केट लेवल पे जब ये ट्रांजैक्शन होता है, जिस वैल्यू से ये ट्रांजैक्शन होता है उसको क्या बोला जाएगा? फेयर वैल्यू, राइट? नाउ under appropriate circumstances, market value or net realizable value provides an evidence of fair value. कभी कभी सिचुएशंस ऐसे है तो मार्केट वैल्यू ही फेयर वैल्यू बन जाता है, या फिर नेट रियलाइजेबल, और ये मार्केट वैल्यू एक एविडेंस देता है फेयर वैल्यू का, राइट? नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी एक एविडेंस देता है फेयर वैल्यू का. सी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, तीनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है ना? मार्केट वैल्यू अब हम समझते हैं, हमने फेयर वैल्यू समझ लिया. फेयर बेसिस पे आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में नॉलेजेबल विलिंग बायर और नॉलेजेबल विलिंग सेलर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन होगा, उसको क्या बोला जाएगा? फेयर वैल्यू. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू इज द अमाउंट ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन ओपन मार्केट. आज आप जाके मार्केट में बेच आए आपके इन्वेस्टमेंट को, कौन सी अमाउंट आपको रिसीव होगी? हाँ, आपका जो भी सेलिंग एक्सपेंस होगा उसको बात करने के बाद, जैसे मान लो ब्रोकरेज है, कमीशन है, वो सभी एक्सपेंस को, कोई ड्यूटीज़ है, उन सभी एक्सचेंज को सभी एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद, नेट ऑफ करने के बाद जो भी आपका प्राइस हुआ उसको क्या बोला जाएगा? मार्केट वैल्यू. मतलब आप ओपन मार्केट में आज ही जाके अपना इन्वेस्टमेंट बेच आओ तो क्या वैल्यू आपको मिलेगा, उसको क्या बोला जाएगा? मार्केट वैल्यू. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड में दो चीज़ें बताई गई है इन्वेस्टमेंट के बारे में. पहले फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट कौन से फॉर्म्स में होता है, राइट? एंड दूसरी उन्होंने बात की है क्लासिफिकेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाना. क्लासिफिकेशन पे बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन है. फॉर्म्स में तो ठीक है, क्या थोड़ा सा बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स दो तरह के होते हैं. एक फिजिकल फॉर्म में होता है, एक नॉन फिजिकल फॉर्म में होता है. फिजिकल फॉर्म में कौन सा होता है? बिल्डिंग है, लैंड है, आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में आपके सामने है, राइट? लेकिन जब आप चाहते हैं नॉन फिजिकल फॉर्म में, तो वो एक सर्टिफिकेट के रूप में होता है. मान लो शेयर्स, सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स, वो सभी क्या है? आपको एक सर्टिफिकेट लिखा दिया गया है कि आप इस कंपनी के इतने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं. क्या आप शेयर्स को देख सकते हैं? आपने कभी शेयर्स को देखा है? आपने कभी उसको टच किया है? नहीं, सिर्फ वो एक कागज़ है, एक सर्टिफिकेट है, और उसके द्वारा आपका पूरा इन्वेस्टमेंट है, राइट? तो उसको बोला जाएगा नॉन फिजिकल, ठीक है? और फिजिकल क्या है? बिल्डिंग है, लैंड है,
वो सभी क्या हो गया आपका फिजिकल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के दो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे वो पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें लिखी हुई है, राइट। अभी उन्होंने ऐसा बोला कि कई इन्वेस्टमेंट्स के एक्टिव मार्केट्स होते हैं, कई इन्वेस्टमेंट्स के एक्टिव मार्केट्स नहीं होते। मानो शेयर्स है, उसका एक एक्टिव मार्केट खड़ा हुआ है, तो ठीक है, तो कई इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं उनका पूरा एक्टिव मार्केट रहता है, कई में नहीं भी होता है, ठीक है। जहाँ पे एक्टिव मार्केट होता है वहाँ पे बहुत आसानी से हमें फेयर वैल्यू मिल सकता है। जहाँ पे एक्टिव मार्केट नहीं है वहाँ पे हमें सॉरी, जहाँ पे एक्टिव मार्केट है वहाँ पे तो हमें फेयर वैल्यू आसानी से मिलता है, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वही फेयर वैल्यू होता है। क्योंकि शेयर्स है, स्टॉक एक्सचेंज पे रोज़ाना कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं सेलिंग एंड बाइंग के, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको फेयर वैल्यू, दैट इज़ मार्केट वैल्यू ही हमारा फेयर वैल्यू बन जाएगा वहाँ पे। तो यू कैन गेट इट टू नो इजीली, राइट। बट जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं, ये मतलब उसका कोई वो नहीं है, एक्टिव मार्केट नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या पता चलेगा, हमें कहीं पे देखना पड़ेगा कि उस एरिया में कितना क्या भाव चल रहा है, उस एरिया में कितने सेलर और बायर में किस अमाउंट से ट्रांजेक्शन किया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा बेसिस लेके लेके हमें फेयर वैल्यू तक पहुंचना होगा, ठीक है ना। सो जहाँ पे एक्टिव मार्केट नहीं है तहाँ वहाँ पे हम अलग अलग मीन्स यूज़ करेंगे फेयर वैल्यू तक पहुँचने के लिए, ठीक है। सो ये हुआ हमारा फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने का था। अभी जो मेन डिस्कशन है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। AS13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा रहा है, फर्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर करंट इन्वेस्टमेंट्स। हम पहले बात करेंगे करंट इन्वेस्टमेंट की, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन उन्होंने ऐसे बताया है AS13 ने, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। तो हमें प्रश्न आएगा कि करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो पहले हम समझते हैं करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। So current investment is an investment that is by nature readily realizable. करंट इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि आज आप चाहे तो आपको उसके एक्सचेंज में पैसे मिल सके, आप उसको जल्दी से रियलाइज कर सकें, आप उसको जल्दी से रियलाइज कर सके, राइट। एंड इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। और आप उसको 1 साल से ज़्यादा होल्ड करने का कोई इंटेंशन नहीं रख रहे, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए अपने लिए हुए हैं उसको बोला जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। मान लो 1 साल से कम साल, मतलब 3 महीने के लिए आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, 4-5 महीने के लिए कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 1 ईयर से कम पीरियड के लिए और रेडिली रियलाइजेबल है, तो उसको बोला जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। सो अभी जो 1 ईयर का जो उन्होंने वो दिया हुआ है कंडीशन क्राइटेरिया कि 1 ईयर से कम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कौन से डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, जिस दिन पे आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, आपने एक्वायर किया, उस दिन से लेके 1 ईयर के पीरियड के अंदर अंदर तक आप उसको होल्ड करना चाहते हैं। 1 ईयर के अंदर अंदर वो मैच्योर हो जाएगा, 1 ईयर के अंदर अंदर आप उसको रियलाइज करवा देंगे, दैन दैट विल बी टर्म टू बी करंट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। So intention is not to hold for more than 1 year from the date of the purchase, ठीक है। सो दिस वॉज करंट इन्वेस्टमेंट। एंड लॉन्ग टर्म क्या है, 1 साल से ज़्यादा आप जिसको होल्ड करना चाहें, या फिर जो रेडिली रियलाइजेबल नहीं है। हाँ, अगर रेडिली रियलाइजेबल भी है लेकिन आप उसको होल्ड ही 1 साल से ज़्यादा करना चाहते हैं, दैन इट विल बी टर्म टू बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। सो दिस वॉज व्हाट वॉज इन्वेस्टमेंट। अभी करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन क्राइटेरिया बताया हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उन वैल्यूएशन क्राइटेरिया पे पहले हम पहुंचते हैं, फिर उस वैल्यूएशन कौन सी अमाउंट पे करना है, फिर उस अमाउंट का डिस्कशन करते हैं। कॉस्ट पे हम बाद में आएंगे, कॉस्ट कहाँ पे वैल्यूएशन में यूज़ होगा उसके हिसाब से हम उसको आएंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम सी, ताकि आपका एक पूरा फ्लो रहे। मैंने चार्ट में भी अपना एक ऐसे ही फ्लो मेंटेन किया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट फॉर करंट इन्वेस्टमेंट इज लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। आप करंट इन्वेस्टमेंट को कौन सी अमाउंट से आपके बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, राइट। सो ये हुआ आपका करंट इन्वेस्टमेंट। तो जो करंट इन्वेस्टमेंट है
वो आपको कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, करंट इन्वेस्टमेंट है आपका वो कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर के बेसिस पे आपको वैल्यूएट करना है। तो आपको अभी पता चलेगा कि हमने फेयर वैल्यू तो समझ लिया, अभी कॉस्ट को हमें समझना है, ठीक है ना। आगे उन्होंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन दिया हुआ है, इसलिए मैंने स्किप किया कि आपको पता चले कॉस्ट पे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट पे। तो क्योंकि हमारा वैल्यूएशन बोल रहा है कि करंट इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने के लिए वही अमाउंट को कैरी करवाना है, कैरिंग अमाउंट इन द बैलेंस शीट वही होगा जो फेयर वैल्यू और कॉस्ट में से लोअर होगा, राइट। तो फेयर वैल्यू तो हमने आगे समझ लिया, अभी हम कॉस्ट को समझेंगे, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट में बी कैरिड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू कॉम्प्यूटेड कैटेगरी वाइज। जब भी हम करंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें ये जो लोअर वाला वैल्यूएशन करने का है कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों में से लोअर, क्या वो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे करना है क्या है, या फिर कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे जवाब है करंट इन्वेस्टमेंट के लिए हम कैटेगरी वाइज हमारा वैल्यूएशन करेंगे। कैटेगरी वाइज मतलब क्या मैम, तो कैटेगरी वाइज मतलब ये कि आपको इक्विटी शेयर्स है, मानो तो ए लिमिटेड का आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मानो ए लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है और जेड लिमिटेड है। तो सभी के शेयर्स का मतलब कॉस्ट का टोटल लेने का है, सभी का फेयर वैल्यू का टोटल लेना है और विच एवर इज लोअर करके इक्विटी शेयर्स का पूरा वैल्यूएशन करना है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज करने का है, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं करना है। मतलब ए लिमिटेड का पहले आपने कंपेरिजन किया और वो वैल्यू लिया, फिर एक्स लिमिटेड का किया फिर वो वैल्यू लिया, फिर वाई लिमिटेड का किया फिर वो वैल्यू लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको पूरा क्लब करके इक्विटी शेयर्स का हेड का लेके आपको कंपैरिजन करना है और उसका वैल्यूएशन करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज करना है, खास ध्यान रखना, इसको खास हाईलाइट करना, कैटेगरी वाइज एंड लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, ये दो चीज़ करंट इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, राइट। Thereafter, and any reduction to fair value is debited to profit and loss account. However, if fair value of investment is increased subsequently, अब यहाँ पे ये लोग ऐसा बताते हैं कि जब फेयर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो ऐसा कोई रिडक्शन आता है आपकी फेयर वैल्यू में, तो अब उसको रिडक्शन को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे। लेकिन जब कोई इंक्रीज आता है फेयर वैल्यू में, फेयर वैल्यू आपकी बढ़ गई, तब क्या करेंगे, तब एक बहुत खास ध्यान रखने वाली बात है कि डायरेक्ट इंक्रीज को आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाएंगे। आप जो भी ये इंक्रीज हुआ है उसको अब टिल कॉस्ट की अमाउंट में जितना इंक्रीज है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, एक्सेस जो है उसको इग्नोर करेंगे। मतलब क्या मैम, थोड़ा सा हमें अच्छे से समझाए, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको एक इलिस्ट्रेटिव फिगर लेके आपको इसकी बात समझाती हूँ। सी एंड however if fair value of investment if fair value of investment is increased subsequently, the increase in value of current investment up to the cost of investment is credited to profit and loss and excess portion if any is ignored। अभी मानो आपका फेयर वैल्यू पहले 50 था, कॉस्ट आपका 100 था, अभी आपका फेयर वैल्यू 120 हो गया है, ठीक है। ये आपका फेयर वैल्यू है, ये आपका कॉस्ट है। पहले ये कितना था 50, वहाँ से वो जंप करके इंक्रीज़ हुआ है 120 पे, राइट। एंड कॉस्ट आपका था 100। सो ये फेयर वैल्यू आपको 100 तक जो डिफरेंस है, 50 और 100 कॉस्ट तक का डिफरेंस है 50, वो आप P&L क्रेडिट में ले जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू करके। लेकिन जो एक्सेस 20 है ये तो हमें 100 तक इस अमाउंट को पहुंचाया, लेकिन जो एक्सेस 20 रह गया 120 माइनस 100 दैट इज़ 20 एक्सेस है, उसको हम इग्नोर कर देंगे, कहीं पे बुक्स में हम इसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। आई होप यू आर क्लियर, राइट। ना तो ये हुआ हमारा करंट इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन का डिस्कशन। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आप उसको कॉस्ट पे कैरी करेंगे, उसमें कोई भी लोअर वाला फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। नाउ द कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज देयरफॉर डिटरमाइंड ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस। तो
तो अभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपको उसको कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करने का है, तो अभी हर एक इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट अलग अलग होगा, इसलिए आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज नहीं लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है ना। आपको समझ आया करंट इन्वेस्टमेंट में कैटेगरी वाइज, क्योंकि वहाँ पे लोअर वाला फॉर्मूला था तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको क्लब करके लोअर करके आपको वैल्यूएशन करना था। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको एक्चुअल कॉस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट का हुआ है उस पर आपको कैरी करने का है उस इन्वेस्टमेंट को, तो वहाँ पे कॉस्ट हर एक इन्वेस्टमेंट का अलग होगा। आपने मान लो शेयर्स लिए ए लिमिटेड के 5 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, 500 रुपीज़ में आपने वो शेयर्स का इन्वेस्टमेंट किया। अभी आपने एक्स लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए, मान लो 5 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹120, 600 रुपीज़, तो हर एक का कॉस्ट अलग अलग आया। इस वजह से आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे आपको उसका वैल्यूएशन करना होगा, ना कि कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। तो ये लॉजिक है एक्चुअल में कि हर एक का कॉस्ट अलग होगा, इस वजह से हमें अलग अलग वैल्यूएशन करना रहेगा हर एक इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो ये आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझना होगा। पहले तो दोनों का वैल्यूएशन डिफरेंट है, फिर दोनों का कौन से बेसिस पे क्लब करके करना है या फिर इंडिविजुअल वाइज वो भी डिफरेंट है। thereafter अभी मानो कि कोई भी चेंज आया फेयर वैल्यू में, इंक्रीज या डिक्रीज, वो हमने समझा। यहाँ पे क्या है, क्या हम उस चेंज को रिकॉग्नाइज करेंगे? नहीं। कब चेंज, तो फिर कब रिकॉग्नाइज करेंगे ऐसे चेंज को? व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन अदर दैन टेम्पररी, मार्क माई वर्ड्स। जब भी आपको ऐसा इस एज पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो यू विल नॉट राइट कि परमानेंट चेंज, नहीं, परमानेंट डिक्लाइन वर्ड नहीं लिखेंगे, आपको इसके स्टैंडर्ड के टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने हैं। आपको यही यूज़ करना है, व्हेन देयर इज़ अ डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी। क्या ये स्टैंडर्ड ने ऐसा बोला है परमानेंट? नहीं, उन्होंने ऐसा बोला अदर देन टेम्पररी। तो आप क्यों परमानेंट यूज़ करते हैं? यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्कोर कम होते हैं। जब आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, यू नीड टू यूज़ दिस सम वर्ड समवेयर एंड इधर टू स्कोर गुड, राइट। तो जबकि आप जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई अमाउंट में डिक्लाइन आता है, तब वो डिक्लाइन कोई भी परमानेंट वजह से है। परमानेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई ऐसा टेम्पररी रीज़न नहीं है। ऐसा है कि आपको फ्यूचर में चलने वाला है, लॉन्ग टर्म रीज़न की वजह से आपका ये डिक्लाइन आया है। आज आपका ऐसा डिम्यूनेशन आया है, कल जाके वापस खड़ा होकर मार्केट में इंक्रीज वैल्यू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टेम्पोररी बेसिस पे नहीं है, परमानेंटली ऐसा कोई चेंज आया है, ऐसा कोई सिचुएशन आ गया है कि उसकी वजह से आपका वैल्यू फॉल ही हो गया है और ये भी लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट है, दैन आप उसको उस जो डिमिनिशन हुआ है वैल्यू में, उसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। सो व्हेन देयर इज़ अ डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी, इस वर्ड्स को भी आपको मार्क कर लेना है, ठीक है ना। ये सब आप हाईलाइट करते जाना, डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी। In carrying amount of long-term investments, the resultant reduction in the carrying amount is charged to profit and loss। तो जो भी रिडक्शन हुआ है उसको आप कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे, ठीक है। एंड द रिडक्शन इज रिवर्स्ड वेयर देयर इज अ राइज इन वैल्यू और द रीजंस फॉर रिडक्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। मान लो आज किसी भी वजह से आपका रिडक्शन हो गया, मतलब ऐसा रीज़न है कि लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट है और आपने रिड्यूस कर दिया अपनी वैल्यू को, लेकिन जब आगे जाके फ्यूचर में आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स, जब भी ऐसा कोई रीज़न एग्जिस्ट नहीं है या फिर वापस वैल्यू अप हो गई, राइज हो गई, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट का में जो डिमिनिशन किया था उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आई होप इट वॉज़ वेरी क्लियर। थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, थोड़ा सा अच्छे से समझने का है। अब उसको मेरे चार्ट से पूरा नोट डाउन करेंगे और पूरा उसको कंपेरेबल बेसिस पे पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे समझ आया कि हमें फेयर वैल्यू पता चल गया, लेकिन हमें कॉस्ट समझना होगा वैल्यूएशन करने के लिए। कॉस्ट में कौन सी वैल्यू इंक्लूड होगी, कौन सी वैल्यू नहीं इंक्लूड होगी, कॉस्ट क्या है उसको हमें समझना होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैंने जो पिछले पेज में छोड़ दिया था उस डिस्कशन पे मैं वापस आती हूँ।
सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट है, आपने जो प्राइस पे किया हुआ है अपने इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए, वो तो है ही है। उसमें क्या क्या और इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा, वो देखने का है। तो फर्स्ट पॉइंट, जो भी आपको एक्विजिशन चार्जेस लगे, आपने कोई ब्रोकरेज पे किया, आपने कोई कमीशन पे किया उस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए, या फिर आपने कोई ड्यूटी पे की, तो उन सभी को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया आपका एक्विजिशन चार्जेस के, वो आप इंक्लूड करेंगे अपनी कॉस्ट में। फिर सेकेंड, इफ़ एन इन्वेस्टमेंट इज अक्वायर्ड और पार्टली अक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़। अभी आप जब एक्वायर करते हैं, हर समय आप कैश या बैंक से पेमेंट नहीं करेंगे, उसके बदले में या तो आप उसको शेयर सिक्योरिटीज़ दे सकते हैं, या फिर कोई और एसेट के एक्सचेंज में आप उस इन्वेस्टमेंट को परचेस कर रहे हैं। तब आप उसको कौन सी वैल्यू पे उसका कॉस्ट समझेंगे। जब आपने उस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के बदले में आपने कोई शेयर्स दिया हुआ है, आपने कोई सिक्योरिटीज़ दिया हुआ है, तो आप फेयर वैल्यू ऑफ दो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ गिवन अप को लेके आप अपना कॉस्ट समझेंगे। मतलब जो भी आपने शेयर सिक्योरिटीज उनको एक्सचेंज में दिए आपके इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए, उनका जो फेयर वैल्यू है वो आपका बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। ऐसे ही आपने कोई भी एसेट के एक्सचेंज में आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो जो भी एसेट का फेयर वैल्यू है, उस फेयर वैल्यू वो फेयर वैल्यू आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, क्या है, मान लो कि कोई शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ का ऐसे पता नहीं चल रहा है फेयर वैल्यू, तो आपने जो भी एसेट फेयर वैल्यू में नॉट बी नेसेसरली बी इक्वल टू नॉमिनल और पार वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड। जो भी सिक्योरिटीज इशूड की गई है उसके पार वैल्यू मतलब कि फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू के बराबर नहीं होगा, फेयर वैल्यू अप डाउन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम अनदर एसेट की बात करें, जो भी हमने एसेट दिया उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, या फिर ऐसे एविडेंस नहीं है जो उसका मतलब पुरावा दे सके कि हाँ यही उसका फेयर वैल्यू हो सकता है, या फिर वो ज़्यादा मतलब उस जो भी आपने एसेट इन्वेस्टमेंट अक्वायर किया उसका जो फेयर वैल्यू है वो क्लियरली एविडेंट है सोर्सेज से कि इसका फेयर वैल्यू यही हो सकता है। उसके मोर सोर्सेज ऐसे हैं कि वो एविडेंस दे रहे कि इसका फेयर वैल्यू प्रॉपरली करेक्ट है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट जो आपने अक्वायर किया उसकी फेयर वैल्यू को भी अपना कॉस्ट समझ सकते हैं जब आपने एक्सचेंज में कोई एसेट दिया है। समझ सी, यहाँ पे जब आपने कोई एसेट, पहले तो शेयर्स दिया हुआ है तो फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ और शेयर्स लेने का है, लेकिन जब आपने कोई अनदर एसेट दिया हुआ है तब आपको फेयर वैल्यू जो आपने एसेट दिया उसका लेने का है, या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया उसका फेयर वैल्यू, विच एवर इज़ मोर क्लियरली एविडेंट। ओके, तो जो भी ज़्यादा एविडेंट है, जो भी ज़्यादा मार्केट सोर्सेज से अच्छे से प्रॉपरली करेक्टली एक्यूरेटली मिल पा रहा है, उस फेयर वैल्यू को आपको लेने आया, या फिर एसेट गिवन अप का फेयर वैल्यू, या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया है उसका वैल्यू। ठीक है, वो बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हुआ आपका दूसरा सिचुएशन जहाँ पे आपने एक्सचेंज कोई चीज़ का एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का इनकम है आपको रिसीव होता है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज करने चाहते हैं वो इनकम पहले से अक्रू हो चुकी है आपके डेट ऑफ परचेज से पहले। मानो इंटरेस्ट था जून और सितंबर में आपका इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट, तो जून में अक्रू हो गया, आपने जाके अगस्त में इन्वेस्टमेंट परचेज किया, ऑलरेडी इंटरेस्ट अक्रू हो गया था, रिसीव आपके परचेज होने के बाद आपको हुआ, तो क्या वो आपके कॉस्ट में इंक्लूड होगा? ये सवाल अभी आगे हमें समझना है। सो interest, dividend and rentals receivable in connection with an investment are generally regarded as income, being the return on investment। ये सभी इनकम है, इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, डिबेंचर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, शेयर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने से, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करने से आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, लैंड है, बिल्डिंग है, आप उसको लीज पे देते हैं तो उसमें से आपको रेंटल्स मिलता है। प्लांट एंड मशीनरी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप किसी को रेंट में यूज़ करने देते हैं। ठीक है, तो वो रेंटल्स है, वो भी आपका इनकम है, तो ये सभी को क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। ठीक है,
तो कभी ऐसा होता है कि ये जो इनकम है वो आपका कॉस्ट का रिकवरी है, इनकम नहीं है। सी दिस इज़ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सभी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बोला जाता है। लेकिन ये रिटर्न है वो दो चीज़ों में बांटा जाता है, एक तो वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट है या फिर वो आपका इनकम का असल पार्ट बनता है। सी दिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, रिकवरी ऑफ कॉस्ट और एल्स इट इज़ एन इनकम। इनकम कब बोला जाएगा, आपने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, अब आगे से जो भी इनकम आएगा, जो भी रिटर्न आपको मिलेगा, वो सभी आपका इनकम का पार्ट बनेगा। लेकिन आपने खरीदने से पहले जो भी इनकम अक्रू हो गई वो आपके खरीदने के बाद आपको रिसीव हुई, वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपकी कॉस्ट की रिकवरी है। इसलिए इस इंटरेस्ट को, इस डिविडेंड को, इस रेंटल्स को, ये जो रिटर्न है उसका आप दो पीरियड्स में बंटवारा करेंगे, प्री एक्विजिशन पीरियड एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ये डिस्ट्रीब्यूशन करके आपने जो प्री एक्विजिशन पीरियड का जो रिटर्न होगा, प्री एक्विजिशन पीरियड का जो रिटर्न आया हुआ है, आप उसको अपनी कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। कौन सी कॉस्ट में, आपका इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है उसमें से ये जो रिटर्न प्री एक्विजिशन पीरियड को जो क्लासीफाई हुआ है वो आप उसमें से रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। जो भी रिटर्न मिला उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो पीरियड्स में, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। प्री एक्विजिशन पीरियड, it is a recovery of your cost, so it will be deducted from the cost of investment। एंड जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का जो आपका रिटर्न है वो तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात उन्होंने समझाई। ये जो रिकवरी वाला है लेस फ्रॉम कॉस्ट, और ये जो इनकम का पार्ट बनेगा वो P&L क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, ये रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट कौन सा है, प्री एक्विजिशन पीरियड वाला रिटर्न, वो क्या है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। पहले अक्रू हो गया, बाद में आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, बाद में आपको रिसिप्ट हुआ। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यही बात उन्होंने अच्छे से आगे समझाई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने कॉस्ट में कौन से टॉपिक्स पढ़े, पहले तो एक्विजिशन चार्जेस ऐड करेंगे, फिर एक्सचेंज में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ या फिर कोई और ऐसे, देयर आफ्टर इनकम की बात की। अभी फोर्थ पॉइंट, राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स आपको पता होगा, कंपनी इशू करते हैं राइट शेयर्स, ठीक है ना, अपने खुद के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो ये जो राइट शेयर्स हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। तो ये कहीं सभी शेयर होल्डर्स उसको सब्सक्राइब करते हैं ऐसा नहीं होता है। कोई सब्सक्राइब करता है या फिर कोई इस राइट को सेल कर देता है। उनके पास ये राइट आया है लोअर कॉस्ट पे शेयर्स को ख़रीदने का, वो इस राइट को बेच भी सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। जब सब्सक्राइब कर दिए जाते हैं राइट शेयर्स, तो ये जो कॉस्ट है राइट शेयर्स का आपके कैरिंग अमाउंट में ऐड हो जाएगा। मानो आपके ऑर्डिनरी शेयर्स पहले ए लिमिटेड के हैं, 500 रुपीज़ पे आप उसको कॉस्ट पे कैरी कर रहे हैं बैलेंस शीट में। अभी आपको उनका राइट शेयर्स मिला एट द रेट ऑफ ₹10, तो वो जो आपने सब्सक्राइब कर लिया अगर इस राइट शेयर्स को, तो जो भी राइट शेयर्स का अमाउंट आएगा आपका, ठीक है, कॉस्ट आएगा उसका, वो आप वो 500 वाली कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देंगे। कब, जब आपने उसको सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। अनदर केस, आपने सब्सक्राइब नहीं किया बल्कि डायरेक्टली जो आपको राइट मिला उसको मार्केट में सेल ऑफ कर दिया। तो जब ये सेल ऑफ किया आपको सेल प्रोसेस तो मिला ही होगा, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड चीज़। अब आपने शेयर्स परचेस किए जो कम राइट बेसिस वाले शेयर्स थे। कम राइट बेसिस मतलब राइट को उसमें इंक्लूड किया गया हुआ है, ऐसा इन्वेस्टमेंट है आपका। तो जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट कॉस्ट से कम हो जाता है। सी मार्क दिस वर्ड्स प्लीज, the market value of investment immediately after they are becoming x right। अभी कम राइट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब राइट सब्सक्राइब हो जाएगा उसके बाद जब वो एक्स राइट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तब उसका मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम है। सी आफ्टर दे आर बिकमिंग एक्स राइट इज लोअर देन कॉस्ट से कम है, फॉर विच दे वर अक्वायर्ड इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट्स टू द मार्केट वैल्यू। अगर आपका एक्स राइट इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कॉस्ट से भी कम है तो आपको इसको मार्केट वैल्यू से आपके इन्वेस्टमेंट को कैरी करना होगा।
फिर से समझते हैं, कम राइट वाला इन्वेस्टमेंट खरीदा आपने, अगर इस इन्वेस्टमेंट को जब राइट सब्सक्राइब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जब आपका इन्वेस्टमेंट एक्स राइट बन जाएगा, तब एक्स राइट वाला इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू आपकी कॉस्ट से कम है, तो आप जो मार्केट वैल्यू है उससे अपना कैरिंग अमाउंट कैरी करेंगे, ठीक है, उतना वो आप रिड्यूस कर देंगे अपने इन्वेस्टमेंट को। आई होप इट इज़ क्लियर। तो कॉस्ट का इतना डिटेल डिस्कशन किया। पहले तो एक्विजिशन चार्जेस इंक्लूड करेंगे, कोई भी एक्सचेंज में शेयर्स सिक्योरिटीज़ है तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ आपका कॉस्ट बन जाएगा। फिर जब कोई भी अनदर एसेट है एक्सचेंज में, तो जो भी एसेट गिवन अप हो या इन्वेस्टमेंट अक्वायर्ड हो जिसका भी फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट है, वो आपका कॉस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमने इनकम का देखा, प्री एक्विजिशन पीरियड का इनकम है वो आपका रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, वो आप कॉस्ट में से रिड्यूस करेंगे। फिर हमने देखा राइट का, आप सब्सक्राइब करते हैं, नहीं सब्सक्राइब करते, और कम राइट वाले इन्वेस्टमेंट में आपको मार्केट वैल्यू से आपको कम कर देना है जब आपका एक्स राइट मार्केट वैल्यू इज लोअर देन द कॉस्ट। सो हियर वी एंड अप विथ अवर डिस्कशन ऑफ कॉस्ट, राइट। मूविंग फर्दर, वैल्यूएशन में भी हमने देख लिया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ बताई गई है, मतलब आप लैंड, बिल्डिंग, ऐसे में भी, प्लांट एंड मशीनरी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये सभी AS10 के हिसाब से कॉस्ट मॉडल पे वैल्यूएशन किए जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई आगे मतलब समझने वाली बात नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिस्पोजल मतलब क्या, आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। सो ऑन डिस्पोजल, द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड द डिस्पोजल प्रोसीड्स, आपके बैलेंस शीट में जो भी कैरिंग अमाउंट है आपके इन्वेस्टमेंट का, और आपके जो भी डिस्पोजल प्रोसीड्स है, आपने जो भी अमाउंट रिसीव किया सेल करने से, नेट ऑफ एक्सपेंस, मतलब कि आपने जो भी ब्रोकरेज पे किया, कमीशन पे किया, कोई भी ड्यूटी पे की सेल करने के लिए, वो सभी को नेट ऑफ करके आपने जो नेट रिसीव किया, वो सेल प्रोसीड्स में जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में रिकग्नाइज होगा, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर वो लॉस हो, ठीक है। अभी मानो आपने पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं बेच दिया, मानो आपके पास ए लिमिटेड के 10 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट है, आपने अभी तक सिर्फ 5 शेयर बेचे, 5 शेयर आपके पास अभी भी है, तो आप कैसे इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे कि डिस्पोज, आपका सेल प्रोसीड तो है लेकिन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आपके पास तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 10 शेयर्स का है, ना कि 5 शेयर्स का। 5 शेयर्स तो अभी भी आपके वो उसमें खड़े हैं बैलेंस शीट में, तभी आपको अग्रीगेट निकाल के एवरेज निकालना होगा, ठीक है। अग्रीगेट कॉस्ट को लेके एवरेज निकालना होगा। सी कैरिंग अमाउंट टू बी एलोकेटेड टू दैट पार्ट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी आपका कैरिंग अमाउंट है उसका एवरेज निकालेंगे टोटल होल्डिंग के हिसाब से, और उस हिसाब से आप अपना कैरिंग अमाउंट, प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, जिसको आप डिस्पोजल प्रोसीड से कंपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। ये तो बहुत ईजी है, हर वक्त हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए यही करते हैं कि जो भी आपका सेल ऑफ हुआ उसमें से एक्सपेंस रिड्यूस करके आपका कैरिंग अमाउंट रिड्यूस कर देते हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जब भी आपका इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफाई होता है, मानो आपने शेयर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया था। अब इस साल आप सोच रहे हैं आप इस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, आप इस इन्वेस्टमेंट को अभी 1 साल से ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहते, तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई हो गया, राइट। तो जब ऐसा रिक्लासिफिकेशन होता है, लॉन्ग टर्म से करंट हो रहा है, तब आप ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र कौन सी अमाउंट पे वैल्यू करेंगे। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र जो भी कॉस्ट होगी और जो भी कैरिंग अमाउंट होगी, ठीक है, उसमें से जो भी लोअर है उस अमाउंट से आप इस इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करेंगे, राइट। अभी जब आपका कोई इन्वेस्टमेंट था करंट पर्पस के लिए, आपने इन्वेस्ट किया था, मानो मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया सिर्फ 1 ही साल के लिए, मैंने सोचा था इस साल में मैं बेच दूंगी, लेकिन आपको भी ऐसा इसके फिनेंशियल्स देख के आपको उसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच लिया है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म पर्पस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसको इंटेंशन कर रहे हैं कि आप होल्ड करेंगे अभी 1-2 साल, तो अभी आपका इंटेंशन हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो करंट से वो रिक्लासीफाई हो गया, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। तब आपको ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र जो भी कॉस्ट
एंड जो भी फेयर वैल्यू है विच एवर इज लोअर है उसको लेके आपको वैल्यू करना होगा। सी, जब आप करंट में क्लासीफाई और जा रहे हैं तब आपको कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट का देखने का है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई होने जाने वाले हैं तब आप कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। कॉस्ट तो दोनों जगह पे है, लेकिन एक जगह पे कैरिंग अमाउंट है, एक जगह पे फेयर वैल्यू है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक ना हो जाए उतावल में या फिर नर्वसनेस में एग्जामिनेशन में। सो ये भी हाईलाइट हो जाना चाहिए एग्ज़ाम के लास्ट डे पे। आपको ये देख लेना चाहिए ऐसी कोई भी छोटी सी मिस्टेक्स होने की वजह से आपके मार्क्स में कोई प्रॉब्लम ना आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ रिक्लासिफिकेशन। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा स्टैंडर्ड हम एंड अप करते हैं। अभी हम सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बाकी रह जा रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे प्रैक्टिकल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये भी है कि जब आप शेयर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप शायद स्टॉक इन ट्रेड के हिसाब से भी आप उसको रखते हैं, ठीक है। आपका वो स्टॉक इन ट्रेड भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तब आपका वैल्यूएशन है आप FIFO वेटेड एवरेज उस मेथड से आप करेंगे AS2 वाली मेथड्स के हिसाब से। यहाँ पे वो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे वो कवर नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा पूरा एंड अप डिस्कशन एंड अप हो रहा है। अभी हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। सो disclosure requirements में first of all you need to say which accounting policy you have followed, right? आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है आपके इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करने के लिए। thereafter the amount included in profit and loss, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी अमाउंट्स इंक्लूड किए, मतलब आपका ग्रॉस इनकम जो भी है, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, ग्रॉस इनकम है वो आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपने ले गए उसको डिस्क्लोज करने का है। ग्रॉस इनकम लेने का है, TDS बाद होने के वाले नेट इनकम नहीं लेने का है, क्योंकि ये जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स बाद हुआ है आपके इनकम में से वो आप एडवांस टैक्स पेड में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्रॉस इनकम बताएंगे, यहाँ पे एक ध्यान रखना ग्रॉस इनकम, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल एंड चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है आप उसको बेच रहे हैं, आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ या फिर उनके कैरिंग अमाउंट्स में चेंज आया उसकी वजह से जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो जो भी है और आप उसकी वजह से जो भी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए वो भी आप यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। फिर सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स ऑफ ओनरशिप, आपके ओनरशिप के राइट में कोई सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन है आप उसको दिखाएंगे। आपके इन्वेस्टमेंट के रियलाइजेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई लग रहा है आपको, अंदेशा है कुछ और, तो आपको उसको डिस्क्लोज करना होगा। फिर आफ्टर इनकम के रेमिटेंस में या फिर डिस्पोजल प्रोसीड्स में भी कोई वो है तो आपको उसको डिस्क्लोजर देना होगा। आपका कोई कोटेड इन्वेस्टमेंट है, अनकोटेड इन्वेस्टमेंट है, दोनों का वैल्यू आपको डिस्क्लोज करना होगा। फिर मार्केट वैल्यू भी डिस्क्लोज करना होगा। फिर और कोई भी डिस्क्लोजर्स जो आपको रेलेवेंट स्टैच्यू के हिसाब से देने हो। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ। अभी हम बढ़ते हैं इलस्ट्रेशंस पे। An unquoted long-term investment is carried in the books at a cost of 2 lakhs. The published accounts of unlisted company received in May 17 showed that company was incurring cash losses with declining market share. Unquoted long-term investment है, ठीक है, 2 लाख का। अभी वो कैश लॉसेस इनकर कर रहे हैं और मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन होने वाले हैं। मे नॉट फेच मोर देन 20,000, तो अभी तो ये परमानेंट डिक्लाइन लग रहा है, कोई भी टेम्पररी रीज़न से वैल्यू में डिक्लाइन नहीं आया है। ये आगे बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी एंड अप ही हो सकती है और आपके तो ये 20,000 से ज़्यादा आपको फैच ही नहीं होगा आपका इन्वेस्टमेंट से। सो इट इज़ समथिंग अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन, राइट, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आप अपना कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे, कैरिंग अमाउंट रिड्यूस कर देंगे अप टिल 20,000, ठीक है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन, आप उसको पढ़ सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर लिया है। मेन जो आंसर है वो आपका ये है कि यहाँ पे आपके जो इंडिकेटर्स है मार्केट वैल्यू के रेफरेंस के हिसाब से वो बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि आपके कैश फ्लोज, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज में डिक्लाइन आ रहा है, जो परमानेंट मतलब टेम्पररी वजह से नहीं है, वो आगे भी चल सकता है और उस वजह से आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन में चेंज लाके आप उसको डिक्लाइन कर देते हैं अपना कैरिंग अमाउंट। ना
X Limited on 11/17 has made an investment of 600 lakhs in equity shares of Y Limited, of which 50% is made in long term category and rest is temporary investment. मतलब कि 600 में से 50% यानी 300 आपका लॉन्ग टर्म है और 300 शॉर्ट टर्म है, ठीक है, ये आपका 50% हो गया. So the realizable value of all such investments became 200 lakhs. लॉस्ट केस ऑफ कॉपीराइट मतलब पूरा 600 का आपका रियलाइजेबल वैल्यू 200 हुआ, तो दैट इज़ 100 ऑफ लॉन्ग टर्म एंड 100 ऑफ करंट, राइट. तो ये आपका रियलाइजेबल वैल्यू हुआ. नाउ फ्रॉम द गिवन मार्केट कंडीशंस इट इज़ अपरेंट दैट द रिडक्शन इन वैल्यू इज़ नॉट टेम्पररी. ये टेम्पररी नेचर का रिडक्शन नहीं है. सो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज. तो जब हम करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप उसको 100 से दिखा देंगे, ठीक है ना. जो भी फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैरिंग अमाउंट है विच एवर इज़ लोअर, कॉस्ट है विच एवर इज़ लोअर, और लॉन्ग टर्म है अदर देन टेम्पररी रीजंस है तो उसमें भी आप फॉल लाएंगे और 100 लाख से आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैरी करवाएंगे, ठीक है. यहाँ पे मैंने वो सभी पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं और बाकी का जो रिडक्शन हुआ है 200 का वो दोनों का आप प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे, राइट. सो दिस इज़ योर सेकेंड इलस्ट्रेशन. नाउ थर्ड, Messrs Innovative Garments Manufacturing Company Limited invested in the shares of another company on 1st October 2016 at a cost of 2,50,000. It also earlier purchased gold of 4 lakh, silver of 2 lakh. ठीक है, तो उन्होंने शेयर्स परचेस किया है, कॉस्ट कितना है 250 एंड गोल्ड का 4 लाख, सिल्वर 2 लाख. अभी मार्केट वैल्यू उन्होंने बताया है. गोल्ड शेयर्स का 225 हो गया है, ठीक है. ये इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर 16 को किया गया हुआ है और आज 31 मार्च 2017 है, राइट. मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तकरीबन 6 महीना हुआ, राइट. और जो गोल्ड एंड सिल्वर तो पहले से परचेज़ किया हुआ है, लॉन्ग टर्म है, मतलब ये लॉन्ग टर्म है आपका गोल्ड एंड सिल्वर, तो वो तो आपका कॉस्ट पे ही कैरी होगा. आपको मार्केट वैल्यू देखने को कोई ज़रूरत ही नहीं है. ये 2014 में परचेज़ किया हुआ है तो ये तो आपका कॉस्ट से ही वैल्यू हो जाएगा 4 लाख एंड 2 लाख, ये राइट. ये दोनों तो यही रहेगा. अभी शेयर्स में आपको लेना होगा 250 या 225 विच एवर इज़ लोअर, दैट इज़ 225, राइट. क्योंकि ये आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो गया है और इसलिए आप उसको करंट में क्लासीफाई करेंगे. आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने वो सभी पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं. यू ऑल्सो कैन हाईलाइट दिस सेम, राइट. नाउ नेक्स्ट, ABC wants to reclassify this investment. अभी ये रिक्लासिफिकेशन वाला इलस्ट्रेशन है, ठीक है, ये लास्ट है, इम्पॉर्टेंट है रिक्लासिफिकेशन वाला पॉइंट. Now decide and state on amount of transfer based on following information. A portion of current investment purchased for 20 to be reclassified as long term. See, फिर से याद करो, करंट से लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो आप कौन सी बेसिस पे करेंगे, फेयर वैल्यू और कैरिंग कॉस्ट, ठीक है. और जब आप उस पर कर रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म से करंट में, तब आप कैरिंग अमाउंट एंड कॉस्ट को देखेंगे. सी, करंट से लॉन्ग टर्म लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म से करंट तब आप कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट का लोअर देखेंगे, ठीक है. सो करंट टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, कॉस्ट आपका 20 लाख है, फेयर वैल्यू दैट इज़ मार्केट वैल्यू 25 है, विच एवर इज़ लोअर 20 पे आप उसको रिक्लासीफाई कर देंगे, राइट. नाउ अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड फॉर 15 टू बी रिक्लासीफाइड एज लॉन्ग टर्म, मार्केट वैल्यू इज 6.5 विच एवर इज़ लोअर, तो 6.5 पे आप उसको वैल्यू करेंगे. नाउ certain long term investments no longer considered for holding purposes to be reclassified as current. ये तो हमने current to long term देख लिया. अब ये long term to current है, तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट एंड कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट 18 लाख है, रिटर्न डाउन टू 12 lakhs टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन, तो ये 12 lakhs आपका कैरिंग अमाउंट है,
ये आपका कॉस्ट है 18 लैक्स, ठीक है, विच एवर इज़ लोअर दैट इज़ 12 लैक्स पे आप उसको वैल्यू करेंगे। बीच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, अदर देन टेम्पोररी डिक्लाइन आया था, उस वजह से आपका कैरिंग अमाउंट 12 लैक्स हो गया था और ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 18 लैक्स, विच एवर इज़ लोअर 12 लैक्स से आप अपना वैल्यूएशन करेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, वेरी ईजी, राइट। सो वो सभी आंसर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 20, राइट, यहाँ पे 6.5, 8.5 का लॉस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना रहेगा और यहाँ पे आपको 12 लाख पे अपना रिक्लासीफाई करना होगा। सो बाकी तो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस आप अपने अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स वाले चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे, राइट। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल पार्ट स्टैंडर्ड का था वो पूरा हमने देख लिया। अभी जल्दी से हम इस स्टैंडर्ड को रिवाइज कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा डिस्कशन को एंड करते हैं। हमने बात की AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। पहले हमने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट है क्या, तो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इट वाज एन एसेट। पहले तो ये एक एसेट है। सी आप उसका फ्लो देख सकते हैं, आप इस चार्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। मैं जूम करती जाती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर पाएँ। पहले तो ये एक एसेट है जो एंटरप्राइज होल्ड कर रहे हैं फॉर अर्निंग इनकम, चाहे वो डिविडेंड के हिसाब से हो, इंटरेस्ट है, रेंटल्स है, कैपिटल अप्रिसिएशन है या फिर और कोई बेनिफिट है, ठीक है। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट का मीनिंग। फिर एक्सक्लूजन्स यानी जो स्कोप के बाहर है, तो इनकम का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया AS 9 में कवर होता है। ऑपरेटिंग और फाइनेंसिस लीज AS 19 में कवर होता है। इन्वेस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज AS 15 में कवर होता है। और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में है, वेंचर कैपिटल फंड्स में है या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बैंक है, PFI है, वो सभी यहाँ पे कवर नहीं होंगे, ठीक है। फिर फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। तो फेयर वैल्यू क्या है, जो भी नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड सेलर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पे, वो आपका फेयर वैल्यू बनेगा। और मार्केट वैल्यू वो है जो ओपन मार्केट में आज आप सेल करने चाह रहे हो, आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो आपका मार्केट वैल्यू होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट उसके दो है, फॉर्म्स एंड क्लासिफिकेशन। तो पहले दो हमने समझे। इन्वेस्टमेंट का पहले फॉर्म समझा कि एक तो फिजिकल में होता है, एक तो नॉन फिजिकल में होता है, राइट। फिर हमने क्लासिफिकेशन समझा। क्लासिफिकेशन में क्या था, लॉन्ग टर्म एंड करंट इन्वेस्टमेंट, राइट। करंट इन्वेस्टमेंट वो है जो रेडली रियलाइजेबल है और आपका कोई इंटेंशन नहीं है उसको एक साल से ज़्यादा होल्ड करने के लिए, राइट। जो भी करंट नहीं है वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो वही मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख लिया है दोनों का, आप देख सकते हैं। फिर हमने वैल्यूएशन समझा, करंट का कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज़ लोअर बट कैटेगरी वाइज, और लॉन्ग टर्म का एट कॉस्ट बट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट वाइज, राइट। जब डिक्लाइन की बात करते हैं तो जब लॉन्ग टर्म में बात करें अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन है तो आप उसको रिड्यूस करेंगे अपनी कैरिंग अमाउंट को और प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, राइट। और जब भी वो सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर आपका राइज हो जाता है तो ये आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जब फेयर वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है, चाहे वो रिडक्शन हो या इंक्रीज़ हो करंट इन्वेस्टमेंट में, तो रिडक्शन हो तो आप उसको P&L डेबिट मार देंगे और इंक्रीज़ हो तब एक ध्यान रखना है, अप टिल कॉस्ट अमाउंट आप उसको इंक्रीज़ करेंगे, P&L में क्रेडिट करेंगे, राइट। फिर हमने पढ़ा कि आपका डिस्पोजल वाला पॉइंट, ठीक है ना, कि आप डिस्पोज करेंगे इन्वेस्टमेंट को तब तो आपको जो भी डिस्पोजल प्रोसीड्स मिला नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस उसको आप कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब आप अपना पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल किया हुआ है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं मैंने लिखा है, तब आपको एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रोपोर्शनल कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करना है। देयर आफ्टर हमने रिक्लासिफिकेशन पढ़ा जहाँ पे हमने समझा जब लॉन्ग टर्म टू करंट हो रहा है तब कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन, और जब करंट टू लॉन्ग टर्म हो रहा है तब आपका कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, राइट।
हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया कि पहले एक्विजिशन चार्जेस आप इंक्लूड करेंगे, फिर कभी आपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ के एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट ख़रीदा है तो आप फेयर वैल्यू ऑफ दो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की अपना कॉस्ट बनाएंगे। अगर आपने कोई और एसेट दे के आपने इन्वेस्टमेंट अक्वायर किया हुआ है तो आप एसेट गिवन अप या फिर इन्वेस्टमेंट अक्वायर्ड जिनका भी फेयर वैल्यू मोर क्लियरली एविडेंट है उसको अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाएंगे। फिर जो भी इनकम हुआ है आपको इन्वेस्टमेंट पे अक्रू हुआ है वो दो में हिस्सों में डिवाइड होता है, एक तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है या फिर एक इनकम होता है। रिकवरी ऑफ कॉस्ट वो है जो आपका प्री एक्विजिशन पीरियड रिटर्न है वो कॉस्ट में से रिड्यूस होता है, और जो भी इनकम होता है वो आपका P&L में चला जाता है, राइट। फिर राइट शेयर्स का डिस्कशन किया, जब वो सब्सक्राइब होता है तो आपका कॉस्ट ऑफ राइट ऐड किया जाता है कैरिंग अमाउंट में, नहीं सब्सक्राइब होता सेल प्रोसेस P&L में चला जाता है, ठीक है। कम राइट वाला इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट इज़ लोअर देन कॉस्ट, आप अपना कैरिंग अमाउंट रिड्यूस कर देंगे, राइट। तो ये हुआ हमारा पूरा कॉस्ट का डिस्कशन। एंड देयर आफ्टर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड, P&L में जो भी अमाउंट ले गए इनकम की वजह से या फिर चेंज इन कैरिंग अमाउंट की वजह से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल की वजह से, वो सभी को आप करंट और लॉन्ग टर्म का दोनों का अच्छे से डिस्क्लोज करना है, राइट। फिर जो भी सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस है आपके ओनरशिप के या फिर कोई भी रियलाइजेबिलिटी का कोई भी इशू है या फिर प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल का इशू है, इनकम का इशू है, वो सभी आपको अच्छे से डिस्क्लोज करने का है। जो भी एग्रीगेट अमाउंट है, मार्केट वैल्यू है, कोटेड एंड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स का दोनों चीज़ आपको बताने की है, और कोई भी अदर डिस्क्लोजर्स आपका स्टैच्यू के हिसाब से दिया गया हुआ है वो सभी आपको डिस्क्लोज करने का है। सो यहाँ पे हमारा चार्ट से हमारा पूरा अच्छे से रिविजन हो गया। आई होप आप देख रहे हैं मैंने वही टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, मैंने पूरा लिंकअप करने की ट्राई की है ताकि आपको एक फ्लो बन जाए, और तो और मैंने सभी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर लिया, राइट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कुछ भी ऐसा नहीं रखा है कि जो आपको छूट जाए, राइट। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले ताकि आप उसको लास्ट डे रिविजन में यूज़ कर सकें और अपने पॉइंट्स को अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप अगर स्टार्ट पे एक नज़र फिरा लेंगे तो भी आपका पूरा स्टैंडर्ड आपको रिकॉल हो जाएगा। यू नो नॉट टू गो टू anything else, right? So now ending up my discussion, thank you everyone, please note down these points, please watch all of the illustrations, try to solve your MTP questions, RTP questions, your past exam questions, right, so that you can get thorough with this topic. Thank you, bye bye.